ANN ایشین نیوز نیٹورک، آگاہی انصاف کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشد کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار MNA عبد المجید خنان خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سوالات کے جواب جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں وہ آج ان سے پوچھیں گے اور وہ آپ کو ان کے جوابات بھی دیں گے۔ سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ صاحب، میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ مسلم لیگ نون اس وقت الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن اس ہمارے ضلع کے اندر آپ نے ٹکٹ جو ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے اور ایک نظر عباس کھواوڑ کے پاس ہے، باقی اوپن کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو قیادت کے فیصلے ہیں۔ قیادت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ہم نے تو پابندی کرنی ہے جی۔ قیادت کے فیصلے ہیں، اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی کیوں اوپن ہے یا کیوں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ میرا جو دوسرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ دریا خان میں کافی دفعہ آپ کامیاب ہوئے، اسمبلی تک پہنچے، اپنا آج تک آپ نے یہاں پہ کوئی مستقل دفتر نہیں بنایا، عارضی طور پہ بنایا، لوگوں کو جھنڈا والے جانے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے اس بار کچھ سوچا؟ دیکھیں جی، دریا خان ہمارا اپنا ہر گھر جو ہے وہ ہمارا دفتر ہے، ہر دوست کا ڈیرا ہمارا ڈیرا ہے۔ اور آج کل تو دفتر کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ دفتر تو قائم کرنا تو نہیں بنتا، کیونکہ موبائل کا دور ہے اور ہر بندہ چاہے اسمبلی میں بیٹھا ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے اسلام آباد، چاہے آؤٹ آف کنٹری بھی ہو، ہر بندہ اب موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں ہے۔ کسی کو کوئی بات کہنی کرنی ہو وہ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی دریا خان ہمارا ہر تیسرے چوتھے دن چکر لگتا ہے اور یہ تھوڑے دن کی ایک ناغہ بنا ہے۔ پہلے تو میں خود میری اپنی رہائش بکھر میں تھی، پھر میرے بھائی سلیم احمد خان صاحب وہ بکھر میں رہے، ابھی وہ تھوڑا بیمار ہوئے تو وہ اسلام آباد اپنی بیماری کی وجہ سے وہ شفٹ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اور اب ہماری خواہش ہے کہ دوبارہ وہاں بکر میں ایک علیحدہ دفتر کہیں یا ڈیرا کہیں یا ایک گھر وہاں پہ ہم شفٹ کر رہے ہیں۔ گھر تو ہمارا ہے موجود، لیکن وہ کسی اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ وہ بکر میں بیٹھے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں بہت ساری خبریں چلتی رہتی ہیں، کچھ مخالفین بھی اڑاتے ہیں اور کچھ ویسے بھی، تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کلور کوٹ پول آپ نے بنایا ہے اس میں بہت سارے ایسے فنڈز بھی تھے جو یہاں کے دریا خان میں لگنے تھے، تو اس میں وہاں پہ لگا دیے گئے، یہاں کے پروجیکٹس کو روک دیا گیا، کیونکہ یہاں ایک بے روزگاری ہے، انڈسٹریل زون بھی ہر دفعہ وعدہ کیا جاتا ہے، یہاں بھی کوئی ایسا خاص نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں جی، آپ خود میرے خیال میں اچھے خاصے سمجھدار ہیں۔ کسی پروجیکٹ کے پیسے دوسرے پروجیکٹ میں جاتے ہیں، یہ تو ایک PSDP کا ایک پروجیکٹ ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی PSDP کے پروجیکٹ کے پیسے کسی دوسرے پروجیکٹ میں جاتے ہیں تو وہ نہیں جا سکتے، وہ واپس گورنمنٹ کے خزانہ میں جا سکتے ہیں، کسی اور پروجیکٹ میں نہیں جا سکتے۔ اور دوسری بات کہ دریا خان میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں، میں تو 2 دفعہ MNA بنا ہوں، یہاں سے کافی دفعہ لوگ MP بھی بنتے رہے، MNA بھی بنتے رہے۔ دریا خان کا گریڈ اسٹیشن کس نے بنوایا؟ اس کا سنگ بنیاد میں نے رکھا۔ آپ کے 2 ڈگری کالج ہیں، دونوں ڈگری کالجز کی سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ کس نے فنڈ منظور کروایا؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایکسین کا ایک علیحدہ میں نے جو دفتر بنوایا، ایک ڈویژن علیحدہ بنوائی کیونکہ میرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھیں یہاں پہ زرعی بینک جو بنوایا وہ کس نے بنوایا؟ یہاں پہ سوئی گیس کا جو پیسہ تھا جو ہم نے منظور کروایا اور انہوں نے ضائع کرنے کی کوشش کی، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سوئی گیس کے پیسے وہ گورنمنٹ اور کمپنی کا 40-60 کا فارمولہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ہی پیج پہ 2 شہروں کے پیسے منظور ہوئے تھے، کلور کوٹ اور دریا خان۔ اور ان بولے بندوں کو یہ نہیں پتا چلا کیونکہ پروجیکٹ ان کا نہیں تھا، انہوں نے وہ پیسے ضائع کرنے کی کوشش کی، اور وہ پیسے جو 40-60 کے 2 شہروں کے پیسے تھے انہوں نے وہ ایک شہر میں بھی پورے نہیں لگا سکے، وہ رستے میں انہوں نے رکوا دیے۔ انشاءاللہ یہ 8 تاریخ کو انشاءاللہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ دوبارہ یہ کلور کوٹ کے انہی پیسوں سے، کیونکہ وہ فنڈ جو ہمارے تھے ہمیں پتہ ہے کہ وہ 60% والا فارمولہ تو
इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, वो पैसे पड़े हैं जिससे कलूर कोट में भी गैस लगनी है और दरिया खान की भी पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी पाइपलाइन। गैस का जो प्रोजेक्ट नामुकम्मल है अभी तक, तो वो इस आपके टेनोर में अगर आप कामयाब हो जाए तो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, और 100% ये मुकम्मल होगा, क्योंकि ये हमने जो पौधा लगाया हम उसकी पारादारी भी करेंगे। आप देखें कि दरिया खान के, अगर आप देखें जिम्नेजियम किसने बनवाया, आप देखें दरिया खान में पार्क किसने बनवाया, आप देखें कि दरिया खान का जब मैंने बना था तो ये करूर कोट से दरिया खान का रोड सिंगल था, वो किसने बनवाया। आप देखें कि जब मैं MNA 2008 में बना तो दरिया खान से दुल्ले वाला ये सिंगल रोड था, ये किसने बनवाया। आप देखें कि जब हम MNA बने 2013 वाली असम्बली में, तो जब शहबाज शरीफ यहाँ पे आया, इलेक्शन लड़ा और इस शहर की जो सबसे एक और मसला बड़ा था सीवरेज का, तो उनसे पैकेज कौन लेके आया, इस शहर का सीवरेज का मसला हल करवाया। अगर ये सारी चीजें आप एक साइड पे कर लें तो बताएं बाकी किसने क्या करवाया। ठीक हो गया। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे मैं यहाँ करूँगा, तकरीबन मैंने हर जो नुमाइंदा इलेक्शन में है उनके आगे ये सवाल रखा है, इसी स्टूडियो में रखा है, मुझे खातिर खा को इसका जवाब नहीं मिल सका। आप एक पुराने सियासतदान हैं, आपसे मैं तवक्को करता हूँ कि इस सवाल का मुझे आप अच्छा जवाब देंगे। हमारे नाजरीन भी आपको देख रहे हैं, थाना कचहरी की सियासत स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तमाम सियासतदान कि हम इसका खात्मा करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ इस इलाके में थाना कचहरी की सियासत शुरू से होती आ रही है। झूठे पर्चे हो गए, थानों पे लोगों को जलील किया जाता है, आज भी वो रिवायात बरकरार हैं, और चोरी की जो वारदात है उसमें इजाफा हो गया है, उससे लोगों को थानों पे जाते हैं उनको जलील किया जाता है, झूठे पर्चे आज भी हो रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कोई आपके पास इसका प्लान है कि नेक्स्ट इसका खात्मा किया जा सके? देखें जी, इसका खात्मे की एक ही वजह है और एक ही तरीका है कि हम लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर हम शरीफ लोगों को प्रमोट करें और जो 2 नंबर बंदे हैं हम उनको डिग्रेड करें, ये है इसका हल। थानों से हम टाउटों का खात्मा करें और जो शरीफ बंदे हैं उनके लिए थाने और कचहरियाँ खुलवाएं कि वहाँ पे उनका आना जाना ईजी हो। और ये हकीकत है कि थानों के लिए जो टाउट हजरात हैं वो तो उनके कमाऊ पूत होते हैं, उनको वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बजाय कोई शरीफ बंदे के, क्योंकि शरीफ बंदा तो जाएगा तो उसने तो नहीं कोई उनको कमाई करके देनी। तो मेरा तो जब भी दौर आया है मैंने कोशिश की है, और आप देख लें कि कभी भी जो हमारा दौर होता है हमने थानों के अंदर से टाउट हमेशा ख़त्म किया है, हमने कचहरियों में जो टाउट होते हैं उनका खात्मा किया है। तो वो उनको मैं अच्छा नहीं लगता, मेरे डेरे पे आए आपको एक भी 2 नंबर बंदा नहीं नजर आएगा, मेरे साथ जो घूमते हैं आपको एक भी 2 नंबर बंदा नजर नहीं आएगा। मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दोस्त हैं वो शरीफ दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं वो गैरतमंद दोस्त हैं, और हमेशा हमने तो सियासत जो की है और उसी फार्मूले पे चल रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों की सियासत थी। हमने हमेशा प्यार और मोहब्बत की सियासत की है, हमने हमेशा एहतराम की सियासत की है, हमने रिस्पेक्ट की सियासत की है, हमने हमेशा कोशिश की है कि जो हमारे दोस्त हैं उनकी इज्जत, उनकी एहतराम में इजाफा हो। हमने कभी भी ये सियासत नहीं की कि हमारी चिट के बगैर कोई बंदा पटवारी के पास नहीं जा सकता, हमने ये सियासत नहीं की हमारी चिट के बगैर या हमारे फ़ोन के बगैर बंदा थाने एंटर नहीं हो सकता। ये सियासत, मैं इस सियासत के सख्त खिलाफ, और इंशाअल्लाह ये जो पिछले 5 साल के अंदर जो सियासत हुई है इसको आप सियासत कहते हैं, तो एक मीना बाजार लग गया था। अब किसी भी इदारे में चले जाए, अब बगैर पैसों के तो इदारे में दाखिल भी नहीं हो सकते। जो आपका काफ़ी इदारे हैं जैसे लैंड रिकॉर्ड है, मुझे बताएं जब शहबाज शरीफ का टाइम था लैंड रिकॉर्ड में आप खुद बताएं किसी ने 1 रुपया दे के काम करवाया था? जीरो होता था, करप्शन फ्री थी लैंड रिकॉर्ड का महकमा। आप मुझे बताएं को कोई एक बंदा आप साबित करके देंगे जो पैसे के बगैर वहां से निकला। ये काफी सारे ऐसे इशू हैं। इशू ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का दिल है पंजाब, सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़े सूबे के साथ जो ज्यादती की गई, जो वहां पे बुजदार जैसा आपने सीएम लगा दिया, ये रिप्लेसमेंट थी शहबाज शरीफ के रिप्लेसमेंट बुजदार के साथ होनी थी। कुछ शहबाज शरीफ से ऊपर का कोई बंदा आप लेके आए, उससे ज्यादा जीनियस, उससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा लेके आए, तब तो है उसकी रिप्लेसमेंट। आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ऐसे बंदे से जिसको मेरे ख्याल में खुद अपने घर वाले भी उसका कहना ना मानते हो, जिसको ये नहीं पता कि बीमारी कोई नाम लेते थे, बीमारी किसी का क्या है, किसी का वायरस का उसको नहीं पता होता।
किसी भी चीज़ का जिसको पता ही नहीं है, तो वो जब ऐसा आपका वजीर आला बनेगा, उस वजीर आला के दौर में यही चीज़ें प्रमोट होनी है, थाना कल्चर प्रमोट होना है, एक एक एसी, एक एक डीएसपी के ट्रांसफर, पता है कितने कितने दिन बाद। मेरे कलूर कोर्ट का आप जाके कैलेंडर देख लें, वो जो लगा हुआ है, बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड एसी ऑफिस में, और टेन्योर का इनका पीरियड का मुलाजिम का, वो डीएसपी और एसी का आप टेन्योर तो चेक करें, एवरेज 3 महीने एवरेज। ये बुजदार के दौर की एडमिनिस्ट्रेशन है कि 3 महीने में आप बताएं कोई एसी या डीएसपी अगर किसी सर्कल या तहसील में जाता है, वो 3 महीने के अंदर उसको क्या पता चलेगा कि ना वहाँ के खानदानों का पता चलेगा, उसको तो रोड का भी पता नहीं चलता, इतनी देर में उसका ट्रांसफर हो जाता है। वो फिर क्या इंतजामी अमूर ऐसा तरीके से करेगा। खान साहब, दीवानी ख़ानदान जो कि काफ़ी अरसे से हमारे इलाके में सियासत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जंडा वाले के जो लोग हैं हमारी साथ इल्हाक के उसके बावजूद नहीं MNA मुंतखब हो सकते। तो इस बार आप नवानी ख़ानदान के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और सईद अकबर खान आपके साथ वहाँ पे MNA का आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं पहली बार। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, आप कोई सरप्राइज बड़ा देंगे? देखिए जी, आप मेरे ख्याल में दरिया खान में आपके सामने हालात हैं, हल्का के पूरे हालात आपके सामने। MNA का तो इलेक्शन अब रहा भी नहीं है। अब तो मेरे मुकाबले में जितने कैंडिडेट हैं, अल्लाह का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है, और इतना अल्लाह का करम, मैं हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे जैसे गुनाहगार बंदों को जो उन मेरे अल्लाह की तरफ से जो सपोर्ट, जो फेवर हमारे हक में एक फ्लो चल पड़ा। तो ये 8 तारीख 3 दिन 4 दिन बाद 8 तारीख है, हर चीज़ सामने आ जाएगी, हर चीज़ कुछ छुपी हुई नहीं रहनी। 3 कैंडिडेट हैं, नारे हर बंदा फिरौनी नारे भी लगा सकता है, तकब्बुर और गरूब अल्लाह ताला को नहीं पसंद। ये सिफात सिर्फ अल्लाह ताला की, अगर ज़मीन पे कोई ये सिफात इस्तेमाल करे तो वो फिरौन है, और फिरौनियत अल्लाह ताला को पसंद नहीं, और ये इसका रिजल्ट आपको 8 तारीख को मिल जाएगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, बल्कि नौजवान तबका जो आपको देख रहा है उनका मुतालबा है, अक्सर हमारे पास प्रेस क्लब में भी लोग आते हैं इस हवाले से कि बखर में ग्राउंड्स मौजूद हैं, करूर कोट में है, दरिया खान तहसील को महरूम रखा गया है, नौजवान सरगर्मियाँ नहीं कर सकते, गेम्स नहीं कर सकते। तो इस हवाले से पहले भी एक MNA यहाँ पे आया, उन्होंने भी वादा किया, आप भी मुंतखब हो चुके हैं, तो इस हवाले से नौजवान आपसे अक्सर मुतालबा भी कर रहे हैं, आप चैनल्स को खोल के देखें। तो अब मेरा इस अपने प्लेटफॉर्म से भी आपसे मुतालबा है और अवाम भी आपको देख रहे हैं, अगर आप मुंतखब होते हैं तो ग्राउंड इस शहर को क्या आप दे पाएंगे? देखिए जी, पूरा ज़िला इस चीज़ का गवाह है कि अब्दुल मजीद खान जो वादा करता है उसकी पारादारी भी करता है। ये भी मैं आपको बखर की अपनी इस दरिया खान शहर के हवाले से, चूँकि आपने स्पेसिफिक ये प्रोग्राम कर रहे हैं, दरिया खान के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें आपको गिनवाई। तो मैंने आपको ये भी कहा कि आप पूछें उनसे जो काफ़ी दफ़ा यहाँ से MP MNA बनते, उन्होंने दरिया खान को क्या दिया। कि पिछले 5 साल से मैं इस रोड से, जो दरिया खान का फेस है, दरिया खान का चेहरा है, कि बंग्याल चौक से लेके लकड़ मंडी से लेके कैंची मोड़ तक, ये दरिया खान का यही है ना, दिल तो यही है ना, दरिया खान का मेन यही है। अब यहाँ पे आप देखें कि कोई आपका दोस्त, आपका अजीज जो भी आता है, वो आपको क्या कहता होगा, जो बाहर से जितने भी आते होंगे कि लाहौर से चले हैं, दरिया खान आके लावारिस शहर है, यही कहते हैं, वो यही कहते हैं ना, लावारिस शहर है, और वो कहते होंगे कि पता नहीं आप किन खंडरात में रह रहे हैं। यही बात। तो चीज़ ये है मेरे भाई कि ये कोई ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ना कोई ऐसा मुश्किल काम है। अगर कोई भी MNA MPA चाहे, इसके लिए कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। इंशाल्लाह आप तो एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं ये ऊपर से इजाफी बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें 8 फरवरी को इलेक्ट करवाएगा, और इंशाल्लाह ये लंबी बात नहीं, ये चंद दिनों के अंदर ये मसला, ये दरिया खान का ये जो फेस है, इसको हमने मुकम्मल बेहतरीन तरीके से इस फेस को हमने दोबारा कायम करना है, बनाना है। और जो आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो पहले भी दरिया खान को एक पार्क दिया था
जो मेरे ख्याल में जैसे मैंने जंडावाला में एक बनवाया स्टेडियम जो, तो वो उन्होंने हमारे मुखालफिन ने पूरे 5 साल रुकवा के रखा। तो ये अभी उसका पोजीशन हमने लिया, जब वो इक़्तिदार से गए तो हमने उसका कब्जा लिया। 5 साल पूरा 50 एकड़ पे स्टेडियम बना हुआ। इतने वो प्यार करने वाले हैं बच्चों के सेहतमंद सरगर्मियों से, खेलों से मोहब्बत करने वाले हैं कि जिम्नेजियम, उसमें पवेलियन भी बना हुआ है, उसमें रूम भी बने हुए हैं, वहाँ पे सारी सहूलियात थी। लेकिन 5 साल उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया और काश्तकारी करवाई। तो ये अभी वो आप अखबारों में भी आया जी, पोजीशन इदारों ने लिया, उनके साथ आके उनके लोगों आलाकार जो उन सियासियों के आलाकार थे, उन्होंने लड़ाई भी की, एसी की गाड़ी के शीशे भी तोड़े कि पोजीशन हमसे ना ले। 4 दीवारी उन्होंने आधी तो उखेड़ ली थी। तो इंशाअल्लाह हमने पहले भी यहाँ जिम्नेजियम भी बनवाया, पार्क भी बनवाया, और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप खेल का ग्राउंड ना कहें, आप डिमांड करें और इंशाअल्लाह हम वो पूरी करेंगे कि इस शहर के लिए जैसे मैंने जंडावाला में बनवाया, जैसे कलूर कोट में बनवाया, बक्खरवाला भी जो है उसके फंड भी हमने दिए थे। जब मैं फर्स्ट टाइम MNA बना था वहाँ भी हमने फंड दिए थे। मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ पे इंशाअल्लाह हम स्टेडियम बनवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल मजीद खनान खाल हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना बड़ी तफसील के साथ, उन्होंने अपने जो हल्के के तरक्याती काम है वो पहले भी गिनवाए और आगे भी इस अज़्म का अयादा किया कि वो हल्के की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। 8 फरवरी का फैसला आपका होगा। देखते रहें ANN। ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ।